सर अज जो स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम हरियाणा की ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है कोर्ट च ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 240 FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1369 1359 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 44 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 279 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਨੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 177 FIR ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 152 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17/8/2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਵਰਡਿਕਟ ਡੇਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡੇਰਾ ਫੋਲੋਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਟੋਨਸ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਛਤਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੇਮਡ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਨੈਬ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ CBI ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋर्ट अपनी ओपिनियन देने लिए क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस प्रकार से मीडिया से एलिगेशंस आ रही थी कि वहाँ से सामान निकाला गया है डेरे में से जिस समय पर इन्होंने डेरे को सेल नहीं किया था, माननीय कोर्ट ने कुछ हद तक उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं सरकार के ऊपर और उसके साथ में ये भी कहा है कि SIT इस बात के ऊपर स्पष्ट रूप से बताए कि कौन कितना सामान वहाँ से गया है और क्या वो उसमें से कुछ निकाल पाए हैं या नहीं निकाल पाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी इस बीच में ये थी कि जिस प्रकार इन्होंने कहा है अपनी स्टेटस रिपोर्ट के अंदर कि 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में जो है डेरे यहाँ पर पंचकुला में हिंसा फैलाने के लिए इन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किया था जिसमें से 52 लाख रुपया SIT ने रिकवर भी कर लिया है। लेकिन जो डेरे के प्रमिसेस हैं वहाँ से कुल 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। तो इस पे माननीय कोर्ट ने बड़ा हैरानी जताई है कि जब 1.25 करोड़ रुपए तक जो है हिंसा के लिए ये इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे में केवल 2 लाख रुपए की रिकवरी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं या तो SIT वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और या फिर जो है कुछ ना कुछ छिपाने का वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये इसकी क्लैरिफिकेशन SIT देगी और बड़ा स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि आप इस बात में एफिडेविट देंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर भी बात हुई है कोई? निश्चित रूप से अवैध कंस्ट्रक्शन के बारे में भी उन्होंने बात की है, लेकिन उसमें क्या है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं उसमें अवैध कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं दी है। तो लेकिन जो साथ में अपेंडेड डॉक्यूमेंट्स जो रिपोर्ट के साथ में है उसको देखते हुए उन्होंने ज़रूर इस प्रकार की बात की थी कि इसकी भी बाद में जो है हम इसके ऊपर भी बहस करेंगे। लेकिन जो जी अगर बात करें संतुष्टि कहीं ना कहीं रिपोर्ट पे जताई नहीं गई है AK पवार जी की, क्योंकि जब तक सारी रिपोर्ट सामने आई क्या कुछ हुआ उसमें? जी देखिए, हाँ ये अभी फ़िलहाल कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि कोर्ट कमिश्नर माननीय कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हैं,
लेकिन जो उन्होंने जो एक बड़ी स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट की आज फाइंडिंग है वो ये है कि कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने केवल मात्र जो साथ में डॉक्यूमेंट या पुलिस ने जो उनको डाटा उपलब्ध करवाया था उसी के ऊपर वो रिपोर्ट बना दी है। तो उसके ऊपर उन्होंने ओपिनियन नहीं दिया है किसी भी प्रकार का कि किस प्रकार का गैरकानूनी वहाँ पे कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो ये कहा है कि इसके अंदर वो ओपिनियन अपना दें और बड़ा स्पष्ट रूप से इनको डिटेल में जो है बताया जाए। डायरेक्शन हुई है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को भी, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की डायरेक्शन हुई है कि वो वहाँ पर कोर्ट के अंदर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल करेंगे रीजनिंग के साथ में। और सिविल सर्जन सिरसा को भी कहा गया है कि वो भी इस बारे में रिपोर्ट फाइल करे कि जो उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को एक रिपोर्ट दी थी कि वहाँ पे डेरे के अंदर चल रहे हॉस्पिटल के अंदर कथित तौर पर कुछ अनियमितताएं जो पाई गई हैं, उन अनियमितताओं के ऊपर जो है उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और क्या नहीं लिया गया, इसके बारे में भी वो बताएं। आज फुल बेंच ने अपनी सुनवाई के दौरान जो एसआईटी की रिपोर्ट थी हरियाणा की उन्होंने सबमिट की। जो दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से हमने स्टेटस रिपोर्ट लेटेस्ट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपना काम पूरी गंभीरता से कर रहा है। हरियाणा पुलिस से अलग अलग स्थानों से जो डिस्क रिकवर हुई हैं, जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनके डेरे की बाकी संपत्तियां हैं, कुल मिलाकर जितना भी उनका सारा ट्रांजैक्शंस है उसकी जांच करने के लिए हमने सभी पत्र लिखे हैं। पुलिस से बाकी सारे डिपार्टमेंट से जानकारियां मांगी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कोर्ट को, मैंने ये बताया कि कुल मिलाकर अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाया है कि इस डेरा के साथ जुड़ी जो कंपनियां, ट्रस्ट, बोर्ड या व्यक्तिगत लोग हैं वो कुल मिलाकर 59 बनते हैं, 59। उनमें से 27 दिल्ली में हैं, 23 पंचकुला में हैं, 5 चंडीगढ़ में हैं और एक एक करके बेंगलोर में, गाज़ियाबाद में, ऐसे करके अलग अलग स्थानों पर हैं। तो वहाँ पर हमने कुल 9 ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं जो उनकी सारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह को असेस करेंगे। इसके अलावा ये भी एक प्रपोज़ल विचाराधीन है डिपार्टमेंट के कि हम इसको सेंट्रलाइज्ड करें ताकि किसी एक जगह ही सब सारी की सारी इसकी जांच पड़ताल हो सके। तो वो दोनों जानकारियां हमने उनको दी हैं। कोर्ट ने अपने स्तर पर मेरे से ये निवेदन किया है, आदेश दिया है मुझे ये कि क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास चिट्ठी लिखकर जवाब मांगना, इन्फॉर्मेशन मांगना, उसमें समय लगता है। सीबीआई की तरह उनके पास रेड करना, डॉक्यूमेंट सीज करना, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मुझे कहा गया कि मैं दोनों प्रावधान और दोनों एजेंसियों की वर्किंग का अध्ययन करने के बाद अगली तारीख पर कोर्ट को ये बताऊं कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अकेला इस मामले में जांच जारी रखे या सीबीआई का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उसकी सहायता ली जाए या उसको जांच के लिए आगे कहा जाए। इस मामले पर दोनों ऑफिसर से बात करने के बाद सीबीआई के भी और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के भी अगली तारीख पर मैं अपना जो ओपिनियन है वो कोर्ट को दूंगा। अब इसकी जो सुनवाई है, 3 विषय जो कोर्ट ने अगस्त में तय किए थे कि क्या ऐसा जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए जिन लोगों ने आह्वान किया है उनसे भरपाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, किसकी जिम्मेवारी है। जो इश्यूज़ नंबर 3, 4 और 5 उन पर बहस 17 जनवरी को होगी और जो भी बाकियों ने रिपोर्ट दाखिल करनी है, इनकम टैक्स वालों ने स्टेटस रिपोर्ट, ईडी ने या एसआईटी या और जो भी आदेश दिए गए हैं वो सब की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की गई है। आज स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट सबमिट की है, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है इन्वेस्टिगेशन के बारे, और कोर्ट ने उनको डिस्कस किया 1 बाय 1 और जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट थी उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। तो वो भी कोर्ट ने कहा है उसको भी थोड़ा रीड आउट करने के लिए, और बाकी और गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी हैं स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए, और दैट्स ऑल। नहीं, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, वो कोई डिसाइड थोड़ी करेंगे कोई इशू। एक आदमी मौके पे गया, उसने जो भी वहाँ देखा वो रिपोर्ट में लिख दिया, तो वो ये फाइंडिंग थोड़ी देंगे भी इसका क्या इफेक्ट है। फाइंडिंग तो कोर्ट ने देनी है। तो उन्होंने जो मौके पे था वो एग्जैक्ट रिपोर्ट कर दी है, उसके ऊपर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं अभी तक आया, और हम भी देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्शन देना है नहीं देना है। अदरवाइज उन्होंने कोई डिसाइड थोड़ी करना है कोर्ट कमिश्नर ने ना, वो आज कोई बात डिस्कस नहीं, वो कोई इशू डिस्कस नहीं। कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक राम रहीम के प्रकरण के मामले में जो केस रजिस्टर किए गए थे उसकी आज 2 स्टेटस रिपोर्ट जो है सरकार की तरफ से पेश करी गई है। कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो एसआईटी के हेड थे एडीजीपी, उन्होंने एक जो इन्वेस्टिगेशन सभी केसेस इस सिलसिले में रजिस्टर हुए थे उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट अपनी सबमिट करी है,
और उसमें जो एक कोर्ट का पिछली तारीख का आदेश था कि कुर्बानी गैंग के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करके बताना है, तो उसके बारे में भी उस स्टेटस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। सारे केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस है उसमें कोर्ट में बताया गया है, जितनी अरेस्ट हुई है उसकी डिटेल उसमें दी गई है, कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं सारी स्टेट में उसके बारे में भी जानकारी सारी दी गई है। इन्वेस्टिगेशन 200 के लगभग जैसे कोर्ट केसेस में चालान ऑलरेडी पेश कर दिया है, उसकी जानकारी भी कोर्ट को दी गई है। और उसमें कुर्बानी गैंग वाले केस में भी कोर्ट को बताया गया है भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आया है कि कुर्बानी गैंग इस तरह बना था, जो कुछ लोग अम्बाला से उसमें संलिप्त थे और उनसे कुछ पैसों की रिकवरी भी की गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो है अभी उनको दिए गए थे भी, जब यदि राम रहीम की कन्विक्शन होती है तो एक्ट ऑफ वायलेंस का रीड करने के लिए उसके, तो सारी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट को बता दी गई है और इन राइटिंग स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से। और बाकी जो एस्पेक्ट्स सिरसा के बारे में कोर्ट ने पूछा था भी, एसपी सिरसा वहाँ पे जो उस समय की सिचुएशन थी उसके बारे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगा। एसपी ने अपनी रिपोर्ट दी है। हियरिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन को जानते हुए कोर्ट ने स्पेशल सरकार से पूछा है कि जो हार्ड डिस्क वगैरह उस समय उन्होंने जला दिए थे या नहीं प्रकरण हो सके, उसके बारे में जो है फर्दर रिपोर्ट जो है अगली तारीख को जो है सरकार की तरफ से पेश की जाए। एसआईटी हेड को डायरेक्ट किया गया है कि अगली तारीख को जो हार्ड डिस्क या और दूसरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर और के माध्यम से आई गई है जो उन्होंने अलग अलग लोगों से शेयर करी है, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट स्पेसिफिकली अगली तारीख को कोर्ट में देगा। एक जो सिरसा में डेरा की बिल्डिंग बनी हुई है उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कोर्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या जो बिल्डिंगें बनाई गई है उसकी अप्रूवल जो रिक्वायर्ड थी वो अप्रूवल ली गई नहीं ली गई, रिक्वायरमेंट्स थी नहीं थी, यदि कोई एग्जम्पशन ग्रांट हुई है तो वो कौन से ऑर्डर है जिसके थ्रू एग्जम्पशन हुई है, कौन से ऑफिसर ने ग्रांट करी थी, कब ग्रांट बनाई गई है, उसकी अप्रूवल जो रिक्वायर्ड थी वो अप्रूवल ली गई नहीं ली गई, रिक्वायरमेंट्स थी नहीं थी, यदि कोई एग्जम्पशन ग्रांट हुई है तो वो कौन से ऑर्डर है जिसके थ्रू एग्जम्पशन हुई है, कौन से ऑफिसर ने ग्रांट करी थी, कब ग्रांट करी थी, और यदि एग्जम्पशन इनको ग्रांट की है क्या उस तरह की एग्जम्पशन बाकी किसी रिलीजियस या सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रांट करी गई है, उसके बारे में अगली तारीख को कोर्ट ने कहा है कि उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट जो है करी जाएगी। एक जो वहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा था क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में आया था भी हॉस्पिटल की वर्किंग में भी कुछ वायलेशंस करी हुई थी, जैसे वो टिश्यू बैंक के लिए लाइसेंस नहीं था। कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है भी जो सिविल सर्जन के नोटिस में आया था भी उसने बताया अभी वायलेशंस थी, तो सिविल सर्जन भी अपनी अगली तारीख को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा भी क्या जो उन्होंने वायलेशन करी थी हॉस्पिटल के चलाने में वर्किंग में, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट को अगली डेट को सबमिट करेगा। तो कोर्ट ने अब जो है अगली तारीख जो है 17 जनवरी लगाई है भी कंपनसेशन के एस्पेक्ट्स में डिसाइड करने के लिए कि प्रिंसिपल कोर्ट डिसाइड करना चाहती है भी इसके जो कंपनसेशन यदि लोगों का हुआ है जो डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी या डैमेजेस टू द पर्सन हुआ है उसकी रिकवरी कौन लाइबल होगा करे सरकार देगी या जो और कोई लोग लाइबल है इस सारी इंसिडेंट्स के लिए वो देंगे। इस चीज़ के लिए प्रिंसिपल ही जो है डिसाइड करने के लिए 17 जनवरी रखी गई है और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की रिपोर्ट के देनी है या दूसरे डिपार्टमेंट ने सरकारी ने रिपोर्ट देनी है उसकी हियरिंग के लिए कोर्ट ने अगली 6 फरवरी की तारीख फिक्स कर दी। सर क्या कुछ जब कुर्बानी गैंग की बात हुई थी ये भी बताया गया था कि उनको 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए थे इस वायलेंस के करने के लिए? उसमें रिपोर्ट में सबमिट किया गया है जो स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी के हेड ने दी है उसमें कहा गया भी 1 करोड़ 25 लाख रुपए के लगभग जो है सारे इन्होंने वायलेंस क्रिएट करने के लिए डेरे की तरफ से अपने फॉलोअर्स को दिए थे। उसमें से 52 लाख जो है कुर्बानी गैंग के जो लोग थे जो पकड़े गए हैं इन्वेस्टिगेशन में और इसमें उनसे रिकवर हुए हैं। तो गुरमीत राम रहीम का नाम एफआईआर में डालने की बात भी उठी थी वहाँ कोर्ट ने ये भी इंक्वायरी के उसमें आर्गूमेंट्स के दौरान पूछा है अभी क्योंकि राम रहीम का नाम है तो वो इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया है एसआईटी हेड की तरफ से कि अभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होने के कारण उसका नाम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसमें उसको ज्वाइन किया गया है, उससे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो राम रहीम है जो सच्चा सौदा के चीफ हैं उनसे भी इस केस में की जा रही है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बारे में जो है
काउंसल्स का कहना था भी, और कोर्ट कमिश्नर ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंपाइल करके रिपोर्ट दी है, आपने कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं। और उसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसके बारे में कोर्ट का कहना था भी जांच में इनको जो है कंसिडर किया गया है कि नहीं किया गया है। अल्टीमेटली क्योंकि वो कोर्ट कमिश्नर ने जो डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिए है उसके बारे में बताया गया भी उसके बेसिस पे डिफरेंट FIR जो रजिस्टर हुए हैं वो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट है, लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट है उसकी कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार करी गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट केसेस रजिस्टर होने के कारण FIR जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट कमिश्नर ने लगाए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके बेस पे एक्शन ले रहे हैं। तो ये भी एज कोर्ट का ये कहना था भी एज ए कंसोलिडेटेड उसकी कोई रिपोर्ट अभी नहीं तैयार करी गई। कोर्ट ने कहा है अभी अगली तारीख को पेश करने के लिए, उसके बारे में एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अगली तारीख को जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस सबमिट करेगी सरकार की तरफ से उसमें दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जैसे हार्ड डिस्क उन्होंने 2 जला दी कर दी, उसमें SIT हेड को अरेस्ट किया गया है, उसके हेल्पर को भी अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो एक FIR का पार्ट है। यहाँ पे जो SIT हेड ने रिपोर्ट देनी थी वो टोटल इन्वेस्टिगेशन के बारे में देनी थी, इसलिए ईच FIR की क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है ऐसी कोई कोर्ट में रिपोर्ट अभी हमने नहीं दी है। और क्योंकि बहुत से केसेस में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो नॉर्मली कोर्ट से शेयर भी नहीं किया जा सकता ओपनली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अपने टैक्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। तो कोर्ट को बता दिया गया है भी अगली तारीख तक, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी यदि ज़्यादा केसेस में अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो एक कंसोलिडेटेड भी उसमें से रिपोर्ट भी SIT हेड जो है वो सबमिट करेगा अगली तारीख को। हाँ, हार्ड डिस्क से डाटा नहीं रिट्रीव हो पाया, लेकिन ये भी बताया गया कोर्ट को भी उनके कंप्यूटर जो हमने सीज किया है उसमें से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, उसी के बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी गई है। और उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें मिली हैं इनक्रिमिनेटिंग उसको इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करके अप्रोप्रिएट एक्शन उसके बारे में लिया जा रहा है।